Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10. So students, in today's video we will start reading with our third chapter from the book First Flight, and the name of the chapter is Two Stories About Flying. Okay, and as the title suggests itself that in this chapter there are two different stories that are written on flying, that are related with flying. Okay, so the first story that we will read in today's video, that story is written by Mr. Liam O'Flaherty. Okay, so इस चैप्टर में हम दो स्टोरीज पढ़ेंगे that are written by two different writers. Okay, और दोनों स्टोरी जो है वो बेस्ड है किस पे, फ्लाइंग पे. So let's begin reading with our first story. His first flight. So the title of our first story is His First Flight. So who is he? Whose first flight we will read in this story. So we will come to know when we continue the story. So let's begin. The young seagull was alone on his ledge. So the first character of this story is young seagull. Seagull is a kind of bird. So here in the picture आप देख सकते हैं, this is seagull. Okay, ये white color का एक bird होता है और जैसा कि इसका नाम ही है seagull, it is a sea bird. Okay, तो ये जहाँ ocean होते हैं, जहाँ seas होते हैं, जहाँ water body होता है, ये वहाँ रहता है जनरली. और ये क्या करता है, it dives into the water and it catches fish. Okay, तो ये पानी में से fish पकड़ता है, फिश खाता है और ये हमेशा वहीं उस एरिया में ही पाया जाता है, सी के आसपास. ठीक है, और ये वाइट कलर का छोटा सा ये बर्ड होता है. तो इस तरह का एक यंग सीगल था, वो अकेला था, अलोन. कहाँ पर? अपने लेज पर. व्हाट इज लेज? लेज इज अ क्लिफ, और स्पेशली क्लिफ में से भी जो ये पॉइंटेड कॉर्नर निकला हुआ होता है, डेट इज नोन एज लेज. ओके, तो जो सी है आप यहाँ देख सकते हैं, नीचे सी है, सी के पास पे एक क्लिफ है, क्लिफ का एक शार्प एज जो है वो निकला हुआ है, डेट इज नोन एज लेज. ओके, तो ये जो सीगल था इसकी पूरी फैमिली इस लेज के ऊपर रहती थी, लेकिन अभी हमने पढ़ा इस स्टोरी में कि वो उस लेज पे अकेला बैठा हुआ था. राइट. His two brothers and his sister had already flown away the day before. So why he is alone on that ledge? Because his two brothers and his sister, they were also there in the ledge one day earlier. But where are they now? They had already flown away the day before. तो एक दिन पहले ही इस सीगल के जो दो ब्रदर्स थे और इसकी जो एक सिस्टर थी, वो एक दिन पहले ही यहाँ से फ्लोन अवे, यहाँ से उड़ के जा चुके थे. लेकिन ये जो सीगल है ये अभी भी वहाँ उस लेज पे बैठा हुआ था और ये बिल्कुल अकेला वहाँ पे था. He had been afraid to fly with them. और ये क्यों वहाँ बैठा हुआ था? Why didn't he fly with his brother and sister? So the reason is that he had been afraid to fly with them. इसको fly करने से, इसको उड़ने से डर लग रहा था, इसीलिए अपने ब्रदर सिस्टर के साथ नहीं उड़ पाया. वो सब उड़ के यहाँ से चले गए. ये डर रहा था, ये नहीं उड़ पाया, इसलिए ये यहाँ लेज पे अकेला बैठा हुआ है. ओके. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. So, जैसे ही उसने ट्राई किया, क्या वो थोड़ा सा रनिंग करके उस लेज के ब्रिंक तक गया. What is brink? Brink means edge. Okay? So वो यहाँ से रनिंग करता हुआ बिल्कुल एज तक आया, ये सोच के कि मैं यहाँ तक तो रनिंग करके जाता हूँ और इसके बाद I will fly. तो with this planning he came running forward till this corner but and he attempted to flap his wings. और यहाँ आगे उसने क्या किया? He attempted. What is attempt? Attempt means to try something. So he came running from this corner, this edge, and then he attempted to flap his wings. Flap means to move up एंड डाउन. सो बर्ड्स जो होते हैं वो ऐसे ही उड़ते हैं, दे फ्लाई लाइक दिस ओनली, दे मूव देयर विंग्स अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. तो वो अपने विंग्स को मूव करते हैं अप एंड डाउन एंड देन ओनली दे कैन फ्लाई. तो ये जो छोटा सा सीगल था, इसने भी यही प्लान किया कि वो रनिंग करते हुए यहाँ तक आएगा और यहाँ पे आके ही विल फ्लैप हिज विंग्स एंड ही विल फ्लाई. बट व्हेन ही ट्राइड, व्हेन ही अटेम्प्टेड, ही बिकेम अफ्रेड. वो यहाँ तक आ तो गया, लेकिन यहाँ पर आते ही उसको डर
डर लग गया, वो अपने विंग्स फ्लैप नहीं कर पाया, वो यहाँ से जंप नहीं कर पाया, वो उड़ नहीं पाया. That's why he is all alone now on that ledge. All his brothers and sisters, they have already flown away, but he is afraid of flying. That's why he is there. So यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट, वो किसकी फर्स्ट फ्लाइट पढ़ेंगे हम, वो पहली उड़ान किसकी है, इस छोटे से सीगल बर्ड की है. ओके. The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. तो उसको किस चीज़ का डर था? The young seagull is very much afraid. Why? Because down, क्या था down? वहाँ पे sea का great expanse था. What is expanse? Expanse means a wide area. So जैसे ही वो running करते हुए उस ledge के edge तक आया, corner तक आया, he saw the sea, the wide sea, the vast sea beneath the cliff and he was afraid. Okay, तो जैसे उसने देखा कि नीचे जो है वो कितना ज़्यादा वाइड सी है, ऐसा सी जो कि स्ट्रेच है, पूरी तरफ से फैला हुआ है, और वो जो सी था वो कितना नीचे था, वो माइल्स डाउन था, यानी वो जो क्लिफ थी वो बहुत ही हाई क्लिफ थी. तो उसको हाइट से भी डर लग रहा था. सेकंड और फर्स्ट तो उसको लग रहा था हाइट्स को देख के डर, और सेकंड उसने देखा कि नीचे तो चारों तरफ सी है, वो देख के भी वो बहुत ज़्यादा डर गया था. So that's why he couldn't fly along with his brothers and sister, and now he is all alone on that ledge. Okay. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो अब इसके जो ब्रदर्स हैं, सिस्टर हैं, जो सिबलिंग्स हैं इसके, वो यहाँ से जा चुके हैं उड़ के, लेकिन ये सीगल थोड़ा सा डरा हुआ है इसलिए नहीं जा पाया. और अब इसको क्या लग रहा था, इसके मन में किस चीज़ का डर था? He was afraid, he was doubtful कि उसके जो विंग्स हैं वो अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, वो अभी इतने कैपेबल नहीं है कि वो इसे सपोर्ट कर सके. तो ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज विंग्स, ही वॉज नॉट श्योर दैट ही विल फ्लाई यूजिंग हिज विंग्स, ही वॉज नॉट श्योर अबाउट द कैपेसिटी और वी कैन से द स्ट्रेंथ ऑफ हिज विंग्स. तो उसे अपने विंग्स की स्ट्रेंथ पे उसे डाउट था, उसे लग रहा था हिज विंग्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट हिम टू फ्लाई. इसीलिए उसने क्या किया, ही बेंट हिज हेड, वो बिल्कुल एज तक जाके वापस लौट आता है, वो अपना सिर बेंड कर लेता है और वापस से वो भाग के कहाँ जाता है, उस छोटे से होल में चला जाता है जो कि उस लेज के नीचे बना हुआ था, जहाँ पे उसने अपनी पूरी रात बिताई. अकेले वो छोटे से होल में बैठा रहा, अपने डर की वजह से वो उड़ नहीं पाया और अकेला वो उस लेज पे पूरी रात छोटे से होल में वो बैठा रहा, वहीं उसने पूरी रात बिता दी. राइट. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. So now when all his brothers and his little sister, so he was having some brothers and one sister, so they all his brothers and sister, they have already flown away. And how did they fly? And their wings were far shorter than his own. जो इसकी जो सिस्टर थी वो इससे छोटी सिस्टर है, तो उसके जो विंग्स हैं वो इस सीगल के विंग से भी कैसे थे, छोटे थे. तो यानी जो सीगल है जो कि उड़ नहीं पाया, उससे तो अपने विंग्स पे डाउट था, उसको लग रहा था कि उसके विंग्स जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उन विंग्स का हेल्प करके वो उड़ नहीं पाएगा. इस डाउट की वजह से बहुत ज़्यादा डर गया था. अब जो उसकी सिस्टर है वो उससे छोटी है और उसके जो विंग्स हैं वो विंग्स भी इससे थोड़े से शॉर्ट हैं, ठीक है. लेकिन वो भी उसने भी क्या किया, विथ हिज ब्रदर्स उसने भी क्या किया, वो ब्रिंक तक भागे सब, उन्होंने अपने विंग्स फ्लैप किए. दे फ्लैप देयर विंग्स अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स एंड दे ऑल फ्लू अवे. लेकिन ये जो सीगल है जो कि रह गया, ये उड़ नहीं पाया, ये फेल हो गया था अपनी करेज को मस्टर अप करने के लिए. व्हाट इज मस्टर अप? मस्टर अप मीन्स टू फाइंड समथिंग और टू रेज समथिंग. ओके. सो जो इसके सिबलिंग्स थे उनमें इतना करेज था, उनमें इतना कॉन्फिडेंस था दैट दे कुड फ्लाई, बट ये जो सीगल है ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल था. ही वॉज वेरी मच अफ्रेड, दैट्स वाई ही कुडंट बूस्टर अप हिज करेज, ही कुडंट मस्टर अप हिज करेज, ही कुडंट गैदर हिज करेज, ही कुडंट फाइंड हिज करेज, ओके, टू टेक दैट
plunge. Courage for what? Courage to take that plunge. Plunge means to jump. Okay, तो वहाँ पे जो उस लैच का एज था, कॉर्नर था, वहाँ तक आके क्या करना था, अपनी फर्स्ट फ्लाइट के लिए इन सभी को जंप करना था, बिल्कुल एयर में जाना था, और वहाँ पे जब एयर में होंगे तब इनको अपने विंग्स को फ्लैप करना था. दैट्स द वे जिसके द्वारा ये फ्लाई कर पाते. तो वो प्लंज करने के लिए, वो जंप लेने के लिए जो करेज चाहिए था, दैट करेज वॉज नॉट देयर इन दैट यंग सीगल. दैट करेज ही वॉज फेल टू मस्टर अप. दैट करेज ही वॉज फेल टू फाइंड और रेज, which appeared to him so desperate. And that jump in the air, that first jump was looking at desperate for him. What is desperate? Desperate is something that is very great, or we can say that is someone is needed, someone is desired very urgently. So वो जो जंप थी, जो उस जंप के द्वारा वो फाइनली उड़ पाता, वो जब उसको बहुत ज़्यादा डेस्परेट तो लग रही थी, वो बहुत ज़्यादा चाहता था उस जंप को करना, वो बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी उसके मन में कि वो जंप को करे, वो भी उड़ पाए लाइक हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर. बट ही फेल बिकॉज ही वॉज नॉट हैविंग दैट करेज, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, राइट. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him stir on his ledge unless he flew away. अब students जो उसके parents हैं, the parents of that young seagull, they are trying very hard to motivate him, to encourage him कि वो अपना fear छोड़े, वो अपना डर छोड़े and just try and just jump in the air. तो वो क्या कर रहे हैं, जो उसके father और उसके mother हैं उस young seagull के, अब वो देख रहे हैं कि उस बाकी सब बच्चे तो उड़ गए, but that young seagull is now all alone on that ledge and he is not trying, he is afraid very much. So they are trying to motivate him and they are flying around him, they are calling him shrilly. What is shrilly? Shrilly means loudly, or we can say a voice that is very piercing. तो बहुत जोर जोर से loudly shout करके उसको बोल रहे हैं, उसको motivate कर रहे हैं, उसको cheer up कर रहे हैं कि no you can do it, just jump. Upbraiding him, लेकिन जब इतना कहने के बाद भी that young seagull is not trying, he is not jumping, so they are upbraiding him. What is upbraid? Upbraid means to scold. तो अब वो इस तरह की आवाज़ कर रहे हैं जैसे कि उसे scold कर रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो उसके ऊपर. Threatening, और साथ में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस young seagull को threat कर रहे हैं. Threat means उसको frighten कर रहे हैं कि वो यहीं पे stir हो जाएगा. Stir means to die from hunger. तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने फ्लाई नहीं किया तो तुम यहीं पे क्या हो जाओगे, यू विल डाई बिकॉज ऑफ हंगर, क्योंकि यहाँ पे तो खाने के लिए कुछ नहीं है. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो सीगल बर्ड्स होते हैं दे एट फिश, और फिश लेने के लिए कहाँ, नीचे सी में जाना ही पड़ेगा. सो देयर पेरेंट्स वर सेइंग हिम दैट ही विल डाई बिकॉज ऑफ हंगर इफ़ ही वॉन्ट ट्राई, इफ़ ही वॉन्ट फ्लाई. ओके, सो वो हर वो तरीका, दे आर ट्राइंग ऑल द वेज जस्ट टू मोटिवेट हिम, जस्ट टू फोर्स हिम टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट. तो पहले तो वो उसको बहुत ज़्यादा कहते हैं कि उसको मोटिवेट करते हैं. व्हेन ही इज़ नॉट लिसनिंग दे स्टार्टेड स्कोल्डिंग हिम, एंड वन मोर वे दे आर they are using one more way, they are started threatening to him that he will starve, he will die because of hunger unless he flew away. तो पेरेंट्स हर एक तरीका यूज़ कर रहे हैं कि कैसे भी करके, चाहे ये डर की वजह से अपना डर छोड़ दे, अपना उड़ने का डर छोड़ दे, ये कैसे भी करके ये यहाँ से उड़े, अपनी फर्स्ट जंप ले, अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले. तो हर वो तरीका वो यूज़ कर रहे हैं, उसको अच्छे से समझा रहे हैं, नहीं समझ रहे उसको स्कोल्ड भी कर रहे हैं, उसको थ्रेटन भी कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये अपना डर छोड़े और यहाँ से उड़ने की ट्राई करे. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. सो द पेरेंट्स आर ट्राइंग वेरी मच, दे आर ट्राइंग मैनी वेज, डिफरेंट वेज जस्ट टू मोटिवेट हिम, बट द लिटिल seagull is very much afraid and he could not move. He himself wanted to move, he himself wanted to fly, but he is afraid so deeply, he has that deep fear in his heart that he could not move, he could not jump, he could not fly. That was 24 hours ago. और इसके जो सिबलिंग्स हैं, इसके जो ब्रदर्स और
सिस्टर है उनको यहाँ से उड़े हुए अब 24 आवर्स हो चुके हैं, एक पूरा दिन हो चुका है, एक दिन पहले वो सब उड़ के यहाँ से जा चुके हैं और 24 आवर्स से दिस यंग सीगल इज ऑल अलोन ऑन दैट लेज। ओके, सो लास्ट 24 आवर्स से वो जो सीगल है वो अकेला ही उस लेज पे बैठा हुआ है, इसके सिबलिंग्स, इसके पेरेंट्स सब वहाँ से जा चुके हैं और ये एक्चुअल में लास्ट 24 आवर्स से ही इज़ हंग्री, ही इज़ नॉट हैविंग एनीथिंग टू ईट। Since then nobody had come near him and since then जब से उन्होंने इसके सिबलिंग्स ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली थी, जब से वो यहाँ से उड़ के गए हैं तब से कोई भी उसके पास तक नहीं आया है, इसके सिबलिंग्स भी नहीं आए और जो इसके पेरेंट्स हैं वो भी इसके पास नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि वो ये ट्राई कर रहे हैं कि कैसे भी करके यहाँ से उड़े, अपना जो डर है वो अपना डर छोड़े और अपनी जंप ले, अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले। तो वो बस ये चाहते हैं कि इसका डर खत्म हो, इसीलिए वो ट्राई कर रहे हैं, इसके पास तक नहीं आ रहे ताकि वो कैसे भी फोर्स होके वो खुद ही जंप ले ले, खुद ही अपनी उड़ने की ट्राई करे। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। अब वो अकेला वहाँ पे लेज पे बैठा हुआ है, तो लेज जो है वो काफ़ी हाइट पे है, क्लिफ पे है और जो उसके पेरेंट्स हैं, जो उसके सिबलिंग्स हैं, दे ऑल आर फ्लाइंग। तो पूरे दिन उसने क्या देखा, पूरे दिन वो अकेला वहाँ पे बैठा बैठा क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसके ब्रदर्स और सिस्टर के साथ वो भी उड़ रहे हैं। तो जो ब्रदर्स और उसके सिस्टर हैं वो बहुत अच्छे से अब उड़ना सीख चुके हैं और उनको मज़ा आ रहा है, दे आर इंजॉइंग इन फ्लाइंग, सो दे आर फ्लाइंग इन द एयर एंड विद देम द पेरेंट्स आर ऑल्सो फ्लाइंग। एंड वॉट आर द पेरेंट्स डूइंग? द पेरेंट्स आर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। सो जो फ्लाइट है, जो फ्लाइंग है, डेट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ आर्ट। तो ये भी एक आर्ट होती है कि हाउ टू फ्लाई। सो जो पेरेंट्स हैं वो अपने चिल्ड्रन को परफेक्ट बनाना चाह रहे थे इस आर्ट में। सो दे वर टीचिंग न्यू मेथड्स, हाउ टू फ्लाई, हाउ टू जंप, हाउ टू डाइव। सो दे वर मेकिंग देयर चिल्ड्रन परफेक्ट इन फ्लाइंग। ओके, टीचिंग देम हाउ टू स्किम एंड द पेरेंट्स वर टीचिंग द चिल्ड्रन हाउ टू स्किम द वेव्स। व्हाट इज स्किम? स्किम मीन्स टू मूव लाइटली above a surface। ओके, सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो सी गर्ल्स होते हैं, जो सी बर्ड्स होते हैं, क्या करते हैं? दे जस्ट डाइव इनटू द वाटर एंड दे ईट एंड दे कैच द फिश। ओके, तो फिश पकड़ने के लिए उन्हें बिल्कुल वेव्स के ऊपर ऊपर इनको फ्लाई करना होता है और जैसे इनको दिखती है फिश, ये जस्ट बस अंदर जाके डिप करते हैं, डाइव करते हैं एंड दे जस्ट कैच द फिश। तो जो पेरेंट्स हैं दे आर मेकिंग देयर चिल्ड्रन परफेक्ट इन दिस आर्ट, दैट हाउ टू फ्लाई, हाउ टू स्किम द वेव्स। उसको परफेक्ट कर रहे हैं कि जो सी की वेव्स हैं उसके ऊपर ऊपर किस तरह से फ्लाई करना है, सरफेस के ऊपर ऊपर, हाउ टू फ्लाई ओवर द सरफेस ऑफ द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। सो दिस इज द आर्ट। यही वो तरीका है जिसके द्वारा इनको अपना खाना मिलेगा, अपना फूड मिलेगा। सो द पेरेंट्स वर मेकिंग देयर चिल्ड्रन परफेक्ट इन दिस आर्ट, हाउ टू फ्लाई, हाउ टू डाइव, हाउ टू स्किम ओवर द वेव्स। और ये सारी चीज़ें वो यंग सीगल लेज पे बैठा बैठा देख रहा है, वो अपनी फैमिली को देख रहा है, अपने पेरेंट्स को देख रहा है। ही इज लुकिंग एट हिज पेरेंट्स, ही इज लुकिंग एट हिज सिबलिंग्स, बट इवन ही कुड नॉट जंप because he is very much afraid. He is trying, he wanted to jump but he could not because there is a deep fear in his heart. Okay, he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock while his parents circle around raising a proud cackle. Now that young seagull that is all alone on that ledge, अब वो वहाँ से बैठा बैठा वो देख रहा है। Now he is seeing that his older brother, what was he doing? He was able to catch his first herring. Herring is a kind of fish. So here in the picture you all can see this is herring fish and is very commonly found in the sea areas. तो वो जो उसका older brother था उस young seagull का, now he is totally perfect, now he has the perfection in this art। तो उसके पेरेंट्स ने जो उसे ट्रेनिंग दी है, उसको जो परफेक्ट बनाया है, उसके बाद now he was able to catch his first fish, the first herring fish। Okay, and after catching the fish what did he do? He started devour it. Devour means to eat something very hungrily or we can say very quickly. So the older brother of that young seagull, that older
brother caught his first fish, first herring fish, and then he started to devour it, then he started to eat that fish very hungrily, standing on a rock. And when he was eating this fish, he was standing on a rock, while his parents and the parents were very happy कि finally उनको जो ट्रेनिंग है, फाइनली उन्होंने जो अपने चिल्ड्रन को परफेक्ट बनाया है वो बिल्कुल अच्छे से हो गया, जो चिल्ड्रन है वो अच्छे से सीख पाए हैं. सो पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी प्राउड, एंड दे आर फ्लाइंग इन अ सर्कुलर मैनर. ओके, सो वो फ्लाई करते करते दे आर मेकिंग अ सर्कल अराउंड हिम एंड दे वर रेजिंग अ प्राउड कैकल साउंड. सो द पेरेंट्स आर very proud now that finally their children, or we can say their child, their older child is able to catch his first fish. So the parents are very proud, they are flying, making a circle around him, and they are making a proud cackle sound. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. And all the morning, और फिर पूरी मॉर्निंग उसने क्या देखा, उस यंग सीगल ने बैठे बैठे कि जो पूरी फैमिली है उसकी, हिज पेरेंट्स, हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, वो क्या कर रहे हैं, वो एक बड़े से प्लेट्यू पे वॉक कर रहे हैं. वो प्लेट्यू जो कि बिल्कुल अपोजिट था उस क्लिफ से. ओके, एक तरफ तो वो क्लिफ है जहाँ पे वो लैच बना हुआ है, जहाँ पे ये यंग सीगल अकेला बैठा हुआ है, तो इसी क्लिफ के सामने एक प्लेट्यू था. प्लेट्यू हियर इन द पिक्चर यू कैन सी दिस इज अ प्लेट्यू, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्लिफ यू कैन सी. सो उस क्लिफ के सामने एक बड़ा सा प्लेट्यू था. उस प्लेट्यू पे जो पूरी फैमिली थी वो अच्छे से वॉक कर रही थी, और वो सब क्या कर रहे थे, वो देख रहे थे सामने से बैठे हुए, सामने प्लेट्यू पे बैठे हुए वो देख रहे थे इस यंग सीगल को जो कि अब उस लैच पे अकेला था. और वो क्या कर रहे थे, दे वर टॉन्टिंग हिम. व्हाट इज टॉन्टिंग? टॉन्टिंग मीन्स टू मोक एट समवन, और वी कैन से टू इंसल्ट समवन. सो द होल फैमिली वर इंसल्टिंग दिस यंग सीगल. द होल फैमिली वर making fun of this young seagull. Why? For his cowardice, because he was a coward. He was not having that courage, he was not having that that strength to fly. Okay, so he was afraid, and that's why the whole family was making a fun of him. Okay, the sun was now ascending the sky, blazing on his legs that faced the south. So now it is the morning time, so the sun was now ascending the sky. What is ascending? Ascending means going upwards. Okay, so now the sun was going upwards in the sky, and he was creating a heat on his ledge that faced the south. So the ledge where the young seagull was there, so the direction of that ledge was towards the south. Okay, so that ledge was facing towards the south, so that's why there was a great heat on that ledge. Okay, he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. और जो यंग सीगल है वो बहुत ज़्यादा हीट फील कर रहा था. ही वॉज फीलिंग उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी. क्यों? क्योंकि उसने प्रीवियस नाइटफॉल से कुछ भी नहीं खाया था. सो वी हैव रेड अर्लियर दैट इट्स बीन 24 आवर्स पहले ही इसकी पेरेंट्स, इसके सिबलिंग्स यहाँ से जा चुके हैं, और तब से कोई यहाँ आया नहीं है, और तब से बिल्कुल भूखा है. ही वॉज नॉट हैविंग एनीथिंग टू ईट. तो वो उसने 24 आवर्स से कुछ खाया भी नहीं है, और अब उसको ही वॉज फीलिंग वेरी मच हीट, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी अब लग रही थी. He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. So now what he is doing, वो क्या कर रहा है, अब वो धीरे धीरे चल रहा है, और जो वो लेज का ब्रिंक है, जो किनारा है, जो कॉर्नर है, जो एज है, वहाँ तक वो आ गया है, और वो अपने ही स्टैंडिंग ऑन हिज वन लेग, वो अपने एक ही पैर पे खड़ा हुआ है, एंड द अदर लेग इज हिडन अंडर हिज विंग. ओके, जो उसने अपना वन लेग तो अपने विंग के नीचे हाइड कर लिया है, एंड ही इज स्टैंडिंग ऑन हिज वन लेग ओनली. ही क्लोज्ड वन आई, देन द अदर, एंड नाउ ही क्लोज्ड हिज वन आई, एंड आफ्टर सम टाइम ही क्लोज्ड अनदर आई ऑल्सो, एंड ही प्रिटेंडेड. व्हाट इज प्रिटेंड? प्रिटेंड मीन्स टू एक्ट समथिंग और टू मेक समथिंग अपीयर. तब उसे लग रहा है वो कैसे अपने पेरेंट्स को बुलाए. पेरेंट्स तो
आ ही नहीं रहे हैं, 24 आवर्स हो गए हैं, उसको खाना तक नहीं दे रहे, वो भूखा है, तो वो क्या करे। सो नाउ ही इज प्रिटेंडिंग, ही इज एक्टिंग ओके टू बी फॉलिंग अस्लीप। तो वो इस तरह से एक्ट कर रहा है कि वो इतना वीक हो गया है, वो सो रहा है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, वो भूखा है। तो अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहता है ताकि पेरेंट्स में को थोड़ी सी उसके ऊपर सिंपैथी आए, पेरेंट्स उसके लिए उस खाना लेकर आए। तो अपने पेरेंट्स को शो कर रहा है, वो प्रिटेंड कर रहा है, ही इज एक्टिंग ओके। Still they took no notice of him, so he's trying very hard to attract the attention of his parents. He's trying, he's pretending, he's acting, but the family, उन सबको पता है कि वो क्या कर रहा है, और वो सब चाहते हैं एक्चुअल में कि ये अपने डर को छोड़े और अपने अंदर से डर निकाल के ये जंप करे, फ्लाई करे, इसलिए वो उसको मोटिवेट करना चाहते हैं। इसलिए वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं देते, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। दे एक्चुअली डिडंट केयर अबाउट हिज कंडीशन, दे डिडंट केयर अबाउट व्हाट ही इज doing, what he is pretending okay. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. अब क्या देख रहा है वो, सामने जो वो बड़े से प्लेट्यू पे उसकी जो पूरी फैमिली है। So his two brothers and his sister, what were they doing? They were dozing okay. What is dozing? Dozing means sleeping. So his siblings were sleeping on that plateau and their heads were sunking into their necks. तो जब बर्ड्स सोते हैं तो किस तरह से सोते हैं, उनके जो हेड है वो उनके नेक के अंदर बिल्कुल संक हो जाते हैं, बिल्कुल अंदर तक वो एक तरह से चले जाते हैं। सो इस तरह से वो बिल्कुल रिलैक्स होके आराम से सो रहे हैं सामने वाले प्लेट्यू पे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और जो उसके फादर थे वो क्या कर रहे थे, ही वॉज प्रीनिंग द फेदर्स। व्हाट इज प्रीनिंग? प्रीनिंग मीन्स क्लीनिंग द फेदर्स विथ बीक। तो ये जो होती है, दिस इज अ वेरी कॉमन नेचर ऑफ ऑल द बर्ड्स, सभी बर्ड्स ऐसा करते हैं। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं अपनी बीक का यूज करके अपने फेदर्स को वो क्लीन करते हैं। सो दिस एक्ट इज नोन एज प्रीनिंग ओके। सो जो यंग सीगल के फादर थे, ही वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। तो बैक साइड से कैसा है, हमने देखा था पहले भी, ये वाइट कलर का बर्ड होता है, तो उसके वाइट कलर की जो बैक पे फेदर्स थे, सो हिज फादर वॉज क्लीनिंग, ही वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ओके। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। सो सभी अपने अपने काम में बिजी थे, जो सिबलिंग्स थे दे वर रिलैक्सिंग, दे वर स्लीपिंग। जो फादर थे ही वॉज प्रीनिंग द फेदर्स, ओनली द मदर वॉज लुकिंग एट द यंग सीगल, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम ओके। She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. और जो मदर थी वो क्या कर रही थी, वो एक उस प्लेट्यू पे एक छोटा सा हाई हम्प बना हुआ था। मीन्स प्लेट्यू जो होता है वो जनरली फ्लैट होता है, तो उस प्लेट्यू के ऊपर एक छोटा सा एक हम्प बना हुआ था, वहाँ पे वो सीगल की मदर बैठी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और हमने पढ़ा था सीगल इज अ वाइट बर्ड, जो उसका वाइट कलर का जो ब्रेस्ट था वो आगे की तरफ था। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. Okay, so now what is she doing? उसके जो मदर है उसके पास भी एक फिश है, वो भी एक फिश खा रही है, तो फिश को उसने अपने फीट में पकड़ा हुआ है और वो क्या कर रही है, अपनी बीक का यूज़ करते हुए उस फिश का एक पीस वो तोड़ती है, खाती है, और फिर बार बार बीच बीच में वो क्या कर रही है, शी इज स्क्रैपिंग ईच साइड ऑफ हर बीक। ओके, व्हाट इज स्क्रैप? स्क्रैप आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये भी बर्ड्स जो होते हैं जनरली सभी बर्ड्स करते हैं, ये जो अपनी बीक होती है दे यूज टू रब देयर बीक, ये अपनी बीक को ना रब करते रहते हैं, इट इज़ कॉल्ड स्क्रैप। तो ये जो होते हैं इस तरह से स्क्रैप कर रही थी दोनों साइड से। ओके, ईच साइड ऑफ हर बीक, अपनी बीक को दोनों साइड से शी वाज स्क्रैपिंग ऑन द रॉक, तो वहाँ पे जो रॉक थी, रॉक से वो अपनी बीक को स्क्रैप कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, सो जब इस यंग सीगल ने देखा कि इसके मदर के पास एक फिश है, वो फिश खा रही है, तो जैसे इसको वो फिश दिखी, इसको खाना दिखा, ये बिल्कुल से ही वॉज मैडन, मैडन मीन्स एक्सट्रीमली अनॉयड, ये बिल्कुल पागल सा हो गया, क्योंकि लास्ट 24 आवर्स से ही इज नॉट हैविंग एनीथिंग टू ईट, ही डिडंट ईट फॉर द लास्ट 24 आवर्स एंड ही वॉज फीलिंग वेरी हॉट, तो उसको बहुत गर्मी लग रही थी, वो भूखा भी था। एंड व्हेन ही सॉ दैट हिज मदर वॉज हैविंग अ फिश इन हर फीट, सो इट ही वॉज लाइक ही वॉज क्रेजी बिकॉज ऑफ द हंगर। ओके,
Now how he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. तो उसको लग रहा था कि अगर ये फिश उसके पास भी होती तो वो भी फिश को ऐसे ही खाता, और उसको लग रहा था कि उसको भी कितना पसंद है कि वो इस तरह से फिश को टीयर करे, अपनी बीक का यूज़ करके फिश में से एक एक पीस वो निकाले, और फिर नाउ एंड अगेन यानी बार बार अपनी बीक को वो भी स्क्रैप करे, लाइक द वे हिज मदर इज़ डूइंग. तो जब उसने अपनी मदर को इस तरह से करते हुए देखा तो उसको लग रहा था कि उसको भी कितना पसंद है इस तरह से फिश को अपने पैरों में पकड़ना, विद द यूजिंग हिज बीक टू टीयर अ पीस ऑफ द फिश एंड टू स्क्रैप हिज बीक नाउ एंड देन. तो उसको लग रहा था उसको भी ये काम कितना अच्छा लगता है. टू वेट इट, और जो बीक को स्क्रैप करते हैं वो क्यों करते हैं? टू मेक शार्प. ओके, सो जो बार बार जो बर्ड्स अपनी बीक को स्क्रैप करते हैं और वी कैन से रब करते हैं, वो क्यों करते हैं? टू मेक इट शार्प, क्योंकि वो अपनी बीक से ही क्या करते हैं, फिश के पीसेस वो टीयर करते हैं, तो उसके लिए उनको शार्प बीक चाहिए, तो इसलिए वो बार बार अपनी बीक को स्क्रैप करते रहते हैं. तभी जब यंग सीगल ने देखा तो उसको लग रहा था कि काश उसके पास भी ऐसे फिश होती, वो भी ऐसे ही अपनी बीक का यूज़ करके उसको टीयर करता, खाता, और बीच बीच में अपनी बीक को वो भी स्क्रैप करता रहता. बट he is not able to do any of these things because he is afraid, he is not having that courage, he is not having that strength. okay, so अब आगे क्या होता है? जो फैमिली है, जो पेरेंट्स हैं, जो सिबलिंग्स है, आर दे एबल to motivate this young seagull, or what happened with him? We will come to know when we will continue the chapter. So see you in the next video. Thank you.